ہرچند کہ پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیقی نمائندہ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے ثمرآور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ کانفرنس اگر یہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید زیادہ وابستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتری کی کوئی نوید دے سکے۔ اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ یہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔ اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے جو بڑی قابل مذمت بات ہے۔ یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کو برانگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا۔ آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں۔ 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر
मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं, यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है। हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों। अभी आज भी एक फ़ैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज़ का ज़रिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फ़ैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। हमारे दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनके रजिस्ट्रेशन बंद है, बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बग़ैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इसके पैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं और इस पर कोई इमरजेंसी उनके लिए नहीं है। मुल्क में एक क्यों इसमें बाहर की दुनिया से, मगरिब की दुनिया से इनको शाबाश मिलती है। जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो समझते हों कि हमने अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानून साजी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साजियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं? अच्छी भली मामलात पर इत्तेफाक राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक की प्रायोरिटी नहीं है। हम इसको कोई अहमियत नहीं देने को। जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारी गुजारिशात हैं और इस हवाले से मैं एक बार फिर आपको साहब ये बताइएगा कि अभी अदालत के ये मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये जो फैसला आया है फिर इसको आप मैच फिक्सिंग समझते हैं? नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जैसे होना नहीं चाहिए। अभी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये भी एक अदालत का फैसला आया जैसे आपने बात की, और दूसरा हुकूमत ने फौरी तौर पे ये वहाँ से पता चला है कि फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाने की जो है वो इम्कानात है और जल्द बुलाया जाएगा। अगर इन दिनों में, अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मुसवदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या कट होगा, किस तरह से आप जाएंगे? क्या आप उसका बाइकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे? इस हवाले से कोई देखिए, अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। के अलावा हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरी है, क्या आपसे के साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है, और अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकातों के हमारे साथ क्या है? अभी हमें ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका हवाले से आप बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने फ़लस्तीन की बात की और उम्मत मुस्लिमा की बात की, तो ये रोल जो है वो सऊदी अरब अदा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपका क्या स्टांस है, सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? अब मेरे ख्याल में सऊदी अरब करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, उनका एक मकाम है, और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तुर्की, इनका एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़लस्तीन के मसले पर ये अपना कायदाना किरदार अदा करे और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाए। मौलाना साहब पहले तो आपको पहली बात ये कि आपकी जो मीडिया टीम है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं करता। आपके 4-5 जो छोटे बड़े तर्जुमान हैं उसकी जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आता। बाकी सियासी जमात से तावन करती है, लेकिन आपकी पार्टी के जो मीडिया टीम है वो भी कोई तावन नहीं। आप कैसे ताउन चाहते हैं? उनकी मर्जी के सवाल का जवाब चीज़ें पूछते हैं, वो कोई कॉल नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं देते, मैसेज से जवाब नहीं देते। ये आपसे सवाल है जी। देखिए आप
आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमीर मुंतखब हुए हैं। मौलाना साहब, 90 की दहाई से लेकर अब तक आप ही अमीर चले आ रहे हैं, हालांकि आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या जमात उलमा इस्लाम में अब तक आपके मुकाबले में भी और अमीर नहीं आया? ये तो जमात से पूछें, मेरे तो मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने तो इस पार्लियामेंट को मुस्तरद कर दिया और आपने कहा कि इस पार्लियामेंट को कोई हक हासिल नहीं है कोई आईनी तरमीम करने का। दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि आप PTI के साथ मिलकर कोई तरमीम का मसवदा बना रहे हैं, तो ये मतलब है कोई इसमें क्या है कि आप अगर मैंने अपनी सोच आपको बता दी है, ये हमारी सोच है। बाकी हमारे राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारा राब्ता है और उनसे भी यही तय हुआ है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं। PTI से भी यही बात हुई है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं तमाम पार्टियों के दरमियान। जहाँ इत्तेफाक राय हो सकता है, हमें कोई इत्तेफाक राय झगड़ा नहीं है। फिर इत्तेफाक राय वाली तरमीम ये पार्लियामेंट पास कर सकती है। अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं। मौलाना आपने फरमाया, मौलाना आप फरमा रहे हैं कि मंडियाँ नहीं लगनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मंडियाँ भी लगेंगी, खरीदो फरोख्त भी होगी। ये क्या बेहतर नहीं होता कि जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा इसमें पार्टी बनती और फुल कोर्ट का मुतालबा करती, तो ये मामला किसी न किसी हद तक रुक सकता था? ये तो आप पहले मशवरा देते ना। आपने पहले पूछा नहीं। मौलाना साहब, आज के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग तकरीबन अलाउ हो चुकी है। बतौर सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब लोगों की वफादारी? अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असम्बली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असम्बली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है। हम अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फ़िक्र रहें, बाकी जो है तो उनका ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल इधर से ले लें। सर, आपने पहली दफ़ा आपने जो इनकार किया, उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर करवा ली जाती है, तो आपने पेशावर में कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आईनी तरमीम का नहीं, मार्शल लॉ का मसवदा है। तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रुक करवा ली जाती है ज़ोर ज़बरदस्ती, तो फिर आपकी क्या है? ज़ाहिर है जी कि हम तो इससे इख्तलाफ राय करेंगे और इख्तलाफ राय की नौइयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारे नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है। जब वो बनेंगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उनमें मेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे थे? जी, ऐसी मुलाकातें भी है जो कैमरों के सामने नहीं होती, मतलब सियासी जमातों के अलावा भी कोई नॉन स्टेट एक्टर्स तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात? नहीं, आप 24 घंटे बाहर होते हैं, कोई नहीं है। आपके सामने गुजरा है 24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं। आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? सुबह के अज़ान तक तो आप खड़े होते हैं। आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद पे बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ही इसको रोकेंगे या कि रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीज़ें जब हमारे शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था आपने, जो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का यानी जो आपने रास्ता हुआ आपने और वज़ीर आला कहती के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इतना बड़े मामूली लफ्ज़ का है। वहाँ सिरे से हुकूमत नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की अखबार हो जाएगी? मैंने बात कर ली इसके ऊपर, जो काफ़ी है ना। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत कहती थी कि
पहले आपको मनाने की कोशिश की, रहनुमा आते रहे, बाद में उनके ही मौक़िफ़ ये था कि अब हमें मौलाना साहब की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हुकूमत कामयाब होगी आपके बगैर? इस पर तो 2-3 सवाल आ गए हैं, मैंने बात कर ली है, बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। अच्छा मौलाना साहब, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बाहर बताया कि PTI वाले, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत में, तो वो उनको डाकू और चोर कहते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते, तो मौलाना साहब अगर चाहें उनसे बात कर सकते हैं, सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पेशकश आपको हुई और उसमें आप ये किरदार अदा कर रहे हैं? हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफ़रतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अंसर नहीं होना चाहिए और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ तो PTI और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो आपस में किसी बाहमी मुज़ाहमत का शिकार ना हो और उसमें हम कामयाब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इख्तिलाफ होते हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तामीरी तनकीद जो है वो तो हुस्न है हमारी जमहूरियत का, हमारे पार्लियामेंट का, और ये रहेगा। और जिस तरह जितना हुजम अमल का होगा उतना ही हुजम रद्द अमल का होना चाहिए। मौलाना साहब, आपकी वजह से पिछली मरतबा उनका सब निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर गया। एतवार वाला दिन भी जो था कि आसमान गिर पड़ेगा, वो वाकई गिर पड़ा उन पे। क्या आपको लगता है कि अब फिर जो है ये कोशिश, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि फिर उसी तरह ये होने जा रहा है या नहीं? अभी तक तो हमें कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई मुसवदे में नया मुसवदा आता है, रोज़ कोई नया मुसवदा आता है, फिर एक नया मुसवदा आता है। तो इस तरीके से तो अभी तक वहाँ पर भी कोई एक यकजहती मौजूद नहीं है, न एकसुई मौजूद है कि हमें कोई एक बात कही जाए। जिस वक्त कोई एक बात पर पहुँचेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल PTI ने डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या उसकी हमायत आपकी दरख्वास्त के बावजूद अगर मौखिर नहीं करते तो हमायत करेंगे? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि PTI का और हमारा किसी तरह भी कोई मुश्तरका इज्तिमा का कोई फ़ैसला आपस में नहीं हुआ जी। वो अपने जलसे करेंगे, हम अपने जलसे करेंगे, लेकिन हमने एक अपील की है कि जब तक बाहर के मेहमान यहाँ मौजूद हों, हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कि मनफी पैगाम जाए उधर से। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से 7 तारीख को मिलियन मार्च का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में गजा और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से। अगर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान आपसे इस हवाले से रब्ता करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले PTI से भी मुलाकात की और आज बिलावल हाउस जी गए थे इवेंट में गजा मार्च के हवाले से, मिलियन मार्च के हवाले से, अगर जमात इस्लामी आपसे रब्ता करती है और आप मना कर रहे हैं कि इस पर जो सिंगाई तावन तंजीम है उसके मंदूबीन भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अभी मेरे साथ कोई रब्ता करते तो आपका क्या लाया? अभी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है, और जब तक कोई रब्ता नहीं होता तो मैं अगर फिर तो जवाब नहीं दे सकता कोई। बहुत शुक्रिया। एक आदमी 2 सवाल 3 सवाल कर रहा है। और आज की जो तकरीब